بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی خبر تو یہ ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ قیاس آ رہے یہاں بہت زیادہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے استعفیٰ لکھ لیا ہے، تحریر کر دیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان سے لکھوا لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ مختلف جو یوٹیوب چینل ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو صحافی ہیں، وہ اس کا تذکرہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اور ویسے بھی کرتے رہے ہیں۔ اور ظاہر خبر جو ہے اس طرح کی وہ بہت زیادہ عرصے یا بہت دیر تک جو ہے وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور خبر وہ یہی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نے صدر مملکت سے ایوان صدر جا کے ملاقات کی تھی۔ ملک کی جو ایک بحران کی کیفیت ہے، اور ایک سب سے بڑا بحران جو ہے ملک میں ظاہر ہے کہ وہ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جناب اگر عارف علوی صاحب جو ہے وہ 9 ستمبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور 8 ستمبر ان کی مدت آخری ہے، تو آخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ کہیں بھی یہ ان کی جو تبدیلی کا یا ان کو ہٹائے جانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ سوائے ان کے خلاف معاوضے کی تحریک پیش کی جائے، اور وہ معاوضے کی جو تحریک ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوتی۔ قومی اسمبلی موجود نہیں ہے۔ اب نیا صدر اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب نئی صوبائی اسمبلیاں اور نئی قومی اسمبلی آ جائے۔ صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ نئے صدر کا انتخاب کریں تو ان کے پاس یہ استحقاق تو ہے آئین کے مطابق، لیکن جب انہیں کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب استعفیٰ کوئی بھی یہاں تو کوئی یو سی کونسلر سے جو ہے وہ استعفیٰ آسانی سے نہیں دیتا، تو صدر مملکت کا عہدہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہمارے ہاں ان بڑے منصب سے، بڑے عہدوں سے کس طرح استعفے لیے جاتے رہے ہیں، وزرائے اعظم سے بھی، صدر مملکت سے بھی، اور جو ہے کہ اس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے بڑے عہدوں سے کس طرح استعفے لیے جاتے رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ جو بڑے منصب کے لوگ ہیں انہیں گھر بھیجا جاتا رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صدر مملکت سے استعفیٰ لکھوا لیا ہے، تو یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور اب گن لیں آپ کہ جی آج 3 ستمبر گزر گئی، کل 4، 5، 6، 7 اور 8 ستمبر آخری ہے۔ تو اب 48 گھنٹے کہتے ہیں کہ بڑے اہم ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں صدر صاحب کا اگر انہوں نے استعفیٰ لکھ لیا ہے یا ان سے استعفیٰ لکھوا لیا گیا ہے تو وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا، یا اگر کوئی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ واضح ہو جائے گی، اور 8 ستمبر تک جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آخر صدر مملکت جو ہے ڈاکٹر عارف علوی وہ اپنے منصب پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اب ان کے استعفیٰ دینے کی صورت میں ظاہر ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب، وہ جو ہے وہ قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد ظاہر جو بھی طریقہ ہوگا۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر مملکت صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی آئین کے تحت جو ہے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت کو دینی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خط ان کو الٹا پڑ گیا، اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کو جوابی خط جو لکھا اس میں ان سے یہ کہا کہ جناب اب آپ کا یہ اختیار باقی نہیں رہا ہے جو ترمیم ہوئی ہے آئین میں، اور یہ اختیار جو ہے وہ اب چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا؟ تو صدر مملکت سے اس حوالے سے بھی کہا گیا تھا، لیکن جب تک صدر مملکت اپنے منصب پر موجود ہے اور ان کا استعفیٰ سامنے نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ کوئی بھی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا الیکشن کی ڈیٹ ہی دے سکتے ہیں وہ کہ جی میں صدر ہوں، آئین میں اختیار ہے مجھے، تو وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی ڈیٹ پہ الیکشن، اور وہ الیکشن کی ڈیٹ جو دیں گے ظاہر ہے وہ 3 ماہ کے اندر ڈیٹ دیں گے۔ 3 ماہ کے اندر والی جو ڈیٹ ہے اس میں الیکشن ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جناب حلقہ بندی کرنی ہے۔ حلقہ بندی جو ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ
30 नवंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो 30 नवंबर तक जब हल्का बंदी मुकम्मल होगी तो इलेक्शन उसके बाद ही जो है वो शेड्यूल आ सकता है, तो फिर 3 महीने चाहिए। तो एक डेट तो सुना ये दी जा रही है जो कि जी 28 जनवरी जो है 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी ज़ाहिर है ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और अभी इलेक्शन की तारीख का मामला भी अटका हुआ है कि आखिर वो किसे देनी है। हमने आपसे कल भी कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब, जैसे कि खुद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं अता तारड़ साहब, उनका कहना है कि जी 15 अक्टूबर जो है वो फाइनल हो चुकी है डेट नवाज शरीफ साहब की। तो हमने आपसे कल भी कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी की तारीख दे दी है और वतन वापस आना जो है उनका उन्होंने वो हतमी मरहले में या फाइनल कर लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो फिर भी इलेक्शन 3 माह में नहीं होंगे, वो इलेक्शन ज़ाहिर है जनवरी फरवरी में ही हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि अब देखना है कि आरिफ अलवी साहब डेट दे, ये जो 48 घंटे हैं या और आप मजीद रख लें कि जो 72 घंटे हैं, इन 48-72 घंटों में 8 सितंबर तक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ऐसा कौन सा इक़दाम करते हैं जो मौजूदा हुक्मरानों को मजीद किसी आइनी बहरान में मुब्तला कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा ज़ाहिर के सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो ज़ाहिर आइंदा 48 और 72 घंटों में ज़रूर मिल जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम आपको बिजली के बिलों के हवाले से जो एक एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहा है उस हवाले से हम आपको ये ज़रूर बताते चलें कि किसी भी मुल्क की किसी भी बड़ी छोटी सियासी जमात ने कम अज़ कम बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ उस तरह एहतजाज नहीं किया जिस तरह खुलकर जमात इस्लामी जो है मैदान में आई है और बड़ा कामयाब उसका एहतजाज रहा है। ये और बात है कि जमात इस्लामी के एहतजाज को कामयाब करने में कोई और किसी की हिमायत भी शामिल रही, अपील भी शामिल रही, शायद उसका भी यकीनन कोई असर हुआ हो। बहरहाल जमात इस्लामी जो है इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो निगरां हुकूमत के सामने जो है बिल्कुल डट के खड़ी हो गई है और बाकी जमातें जो हैं वो भीगी बिल्ली बनी हुई हैं और ऐसा लगता है कि वो जमातें जो चंद रोज़ पहले तक इक़्तिदार में थी वो ऐसा लगता है कि अब भी इक़्तिदार में ही हैं, इसीलिए वो कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार नहीं कर रही, या अगर वो कोई बयान दे भी रही हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, या अगर वो कोई एहतजाज की बात कर रही हैं तो उसकी कोई अवाम के कान मतलब अवाम जो उसको कोई अब अहमियत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम अब ये समझ चुके हैं कि ये जो कुछ किया जा है ये इन हुक्मरानों का है। ये 2 जमातें जो बड़ी सियासी जमातें, फिर तीसरी पीटीआई भी उसमें शामिल है, फिर जितने इत्तेहादी हैं वो भी उसमें शामिल हैं बिजली के बिलों के मामले में, आईपीपीस का जो मामला है इस हवाले से यानी जो एहतजाज तो जमात इस्लामी ने बड़ा भरपूर किया, कोई जमात सामने नहीं आई, सब इसमें फेल हो गई। सबकी जो है वो यूँ कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई उनकी कोई मजबूरी जो है वो ज़ाहिर के नज़र आती है। लेकिन सराजुल हक साहब ने वो जो कहा था ना कि अगर रात 12 बजे तक की उन्होंने डेडलाइन दी थी कि अगर ये बिजली के नरखों में और पेट्रोल के नरखों में कमी नहीं की गई तो वो एक आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। तो जनाब उन्होंने पाकिस्तान के चारों सूबाई गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है और जमात इस्लामी ये कोई पहली मरतबा ये काम नहीं कर रही कि उसके लिए कोई धरना देना जो है कोई वो मुश्किल मरहला हो। जमात इस्लामी धरने देती रही है, मसाइल के ऊपर धरने भी दिए हैं, एहतजाज भी किए हैं, मुजाहरे भी किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि जो चारों सूबों के जो गवर्नर हाउस है उनके बाहर जो है वो जमात इस्लामी धरना देने जा रही है और बड़ा सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए। इसी हवाले से जमात इस्लामी के एक जो अहम रहनुमा है उनका सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है, उस क्लिप के हवाले से जो एक खबर है या जो कुछ उन्होंने उस क्लिप में कहा है, उन्होंने बाकायदा एक हल पेश किया है ये बिजली के बिलों के हवाले से कि जिसमें IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बड़ा उम्दा हल है और बड़ा सोशल मीडिया में उसकी पजीराई भी हो रही है। तो जमात इस्लामी इस हवाले से न सिर्फ ये कि एहतजाज कर रही है, धरनों का ऐलान कर रही है, बल्कि उनके एक रहनुमा ने बड़ा एक मुनासिब हल भी पेश किया है। वो हल क्या है वो भी हम आपको यहाँ बताते चलते हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों में रिलीफ का अमली मंसूबा पेश कर दिया है जमात इस्लामी के एक रहनुमा ने, और उनका कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट का रियायती हद हो तो इनको 16 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी और इससे 2 करोड़
80 लाख घरेलू सार्फिन में से 2 करोड़ 43 लाख सार्फिन के बिजली का बिल गैर मामूली तौर पर कम हो जाएगा, जिस पर टोटल खर्चा सालाना 326 अरब रुपए आएगा। इसके लिए फौज के 2000 अरब रुपए के जो बजट में से 100 अरब रुपए जो है वो निकाले जा सकते हैं, और इसी तरह एसडीपी के 1500 अरब के बजट में 100 अरब रुपए खसारे में जाने वाले 100 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं, और खसारे में जाने वाले रियासती इदारों जैसे रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, वापडा, जिनके लिए मुख्तस 350 अरब रुपए हैं, इनसे भी 100 अरब ले लिए जाएं, तो किसी आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने एक तरीकाकार बताया है, और दायरे तरीकाकार तो बहुत सारे हैं, असल तो चीज है नियत। और चूंकि नियत हमारे हुक्मरान जो रहे हैं हुकूमतों में, उनकी नियत कभी भी ये नहीं थी कि वो आवाम को कोई रिलीफ फराहम कर करे। उनकी सबसे पहली नियत तो ये थी कि जनाब वो इख्तिदार में आए लूट मार करने के लिए, और उन्होंने खूब खुलकर जो है वो लूटमार की। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने, किसी जज ने उनकी उस लूटमार का नोटिस नहीं लिया। वैसे तो हमारी अदालतें, हमारे जज साहबान बड़े सोमोटो, वो एक आर्टिस्ट, एक फनकारा थी, उसकी शराब की बोतल पे जो है, एक शराब की बोतल उनसे का जो मसला था उस पर उन्होंने नोटिस ले लिया था। कई साल वो केस चला और उसके बाद वो डिसमिस हो गया वो केस भी। तो ये हमारी अदालतें, लेकिन मुल्क के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मुल्क को जो इतने बड़े माशी बहरान में मुब्तला किया गया है, मुल्क के अवाम पर जो एक अजाब नाजिल किया गया है बिजली के बिलों की सूरत में, जिस तरह के इलेक्ट्रिक को बेचा गया, जिस तरह के इलेक्ट्रिक से मामलात मतलब है जो है वो किए गए, किक बैक्स लिए गए, और के इलेक्ट्रिक वो जंगल का बादशाह है कि जनाब उसको कोई हुक्मरान कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए कि हुक्मरानों ने किक बैक्स दिए हुए, और उन किक बैक्स से इन हुक्मरानों ने बैरून मुल्क बड़े बड़े असासे, बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई है। तो वो कैसे, उनको तो सारा बोझ अवाम पे डालना है। अब मसला अवाम पे बोझ डालने का जो है वो सिर्फ अब बिजली के बिल नहीं है, बल्कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, और जिस तरह डॉलर, यूएस डॉलर जो है वो बुलंदियों को छू रहा है, उससे हर शोबा जिंदगी की जितने जो है वो मामलात हैं उस पर असर पड़ रहा है। बसों के किराए बढ़ रहे हैं, ट्रेनों के किराए बढ़ रहे हैं, हवाई जहाज के किराए बढ़ रहे हैं, चीनी के रेट्स 200 रुपए से जायद बताया जाता है, कोयटा में 220 रुपए, पेशावर में 210 रुपए, ये डबल चौबल जो है वो चीनी के। तो इस पे क्यों नहीं वजीर आजम साहब क्यों नहीं नोटिस ले रहे? सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदार हैं इस मुल्क को इस तबाही के किनारे तक पहुंचाने में। तो पहले तो उनका एहतसाब हो, ऐसा एहतसाब हो को दुनिया देखे, उनसे पैसा रिकवर किया जाए, और उस पैसे से जो है वो जो कुछ कर्जे जिस तरह बढ़ रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है तो कर्जे भी जो है वो कई गुना बढ़ रहे हैं, तो वो कर्जों को स्टॉप लगाया जाए, और एक लूट मार का पैसा उनसे निकलवा कर जो है वो कर्जे अदा किए जाएं, और लोगों को किसी तरह ये बोझ अवाम पे ना डाला जाए, किसी भी किस्म का बोझ। तो फिर अवाम ये समझेगी कि वाकईतन जो है हमें कोई रिलीफ देने के लिए आया है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत दूं, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।